Hi, Nishu. Good afternoon. For me, it's good morning because I slept late. Hi, Ismail. Hi. अच्छा, कुछ लोगों को और आने दीजिए. So then I will start what I really wanted to share today. So I'm having Palichi biscuit. That's like it's always been our favorite Indian people, especially those people born on 80s and 90s. The Palichi, yeah, this is my favorite biscuit. Let me tell you one thing. Who asked me that? রিঙ্কু ইউনো বেঙ্গলি খুব ভালো করে আমি বাঙালি আকৃতি হাই আকৃতি মুম্বাই ওয়েব ক্যান বি মিট ম্যাডাম হে महफूज ओके सो काफ़ी लोग आने आने लगे हैं मेरे लाइव में. सो मैं आज अभी जिस बारे में बात करना चाहूँगी वो ये है. सबसे पहले मेरा नाम है मेरा नाम है इवांका दास और मैं कलाकार हूँ. ऑफ कोर्स आई एम एन एक्टर. कुछ टीवी एड्स किए हैं और रियलिटी में आई हूँ और कुछ मैगज़ीन में फीचर हुई हूँ. मगर काफ़ी चर्चे हुए मेरे बारे में न्यूज़ में. और नेटफ्लिक्स का कुछ काम किया जो अभी आने वाले साल में आने वाले हैं. आप लोग देखोगे तो समझ लीजिए कि मैंने अपना एज एन एक्टर करियर जस्ट स्टार्ट ही किया है. मैं बहुत बड़ी कुछ तीर मार खान नहीं हूँ. हाँ, 17 साल से एज ए डांस कोरियोग्राफर काम करती थी, डांसर थी. फिर मॉडलिंग में आई. फॉर्मर मॉडल, मैं पहले मॉडल थी. अब पूरी तरीके से मैं एक एक्टर हूँ और मैं एज एन मतलब एज एक्टर अभिनेत्री में काम कर रही हूँ. मैं इस इंडस्ट्री में जस्ट एंटर ली हूँ. इट्स नॉट लाइक दैट आई एम समथिंग. एंटर ली हूँ एंड देखते माशाल्लाह इंशाल्लाह लाइक क्या होता है. भगवान खुदा क्या मेरे नसीब में लिखा है, मतलब लिख चुके हैं. तो लेट्स सी. सो लेट्स टॉक about which I really wanted to share with you guys. That is, I am transgender. I am trans woman. That is my identity, or identity which I have to say or I have to accept as like people force me to realize that you are fucking transgender. You don't need to tell me that what I am. I know what I am. I'm not the only one who will fight for myself always to be, you know what, for myself to realize that what I am, to tell you about of it. Let me tell you one thing. I know. Please don't tell me what I am. From my soul I feel like that I'm a woman और मैं लड़की हूँ और लड़की रहूँगी और मुझे कोई नहीं बदल सकता है. बट आप मुझे रियलाइज़ क्यों करवा रहे हैं? आपको कौन पगार देता है हर महीने का कि इवांका को रियलाइज़ करवाओ कि आप एक ट्रांसजेंडर हो? भाई तू लड़का है ना, तो आदमी कोई लड़की है. अब मैं लड़के के बॉडी में बच्चा लड़का पैदा हुई थी, मेरी जेनेटिकल दिख हुआ था और वहाँ से मैंने फील किया कि मैं एक औरत हूँ. तो आई फील लाइक टू चेंज माई सेल्फ. तो हु द फक यू आर टू टेल मी अबाउट वॉट आई एम, राइट? अब लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग. क्या क्या मैं फेस करती हूँ अपनी लाइफ में. मैं अगर लड़की पैदाशी भी लड़की होती, मेक श्योर मेरा एटीट्यूड यही होता. अगर मैं ऐसी होती तो, मेरा कैरेक्टर ऐसा होता तो, आई डू फील that being a woman
It doesn't mean that I born as a woman that I have to be in a cage. मैं कोई एक चिड़िया घर में और एक एक इसमें रहूं, बंद के रहूं, ऐसा नहीं है. And being a woman that I have to hide my boobs, that I have to hide my thighs or something like that, which is keen area where more revealing or something like that. Oh, excuse me. हमारा body है, आपको problem है, आप अपने आप को बंद करके रखो. Second, women are more than superior, more than guys. Let me tell you one thing. So there's no connection between woman and transgender or something like that, but what is the connection which I feel about it? Let me tell you. So I feel always from my inside, like always inside, like from my inside, that I am a woman. So my all activities, my all thinking process, my all thought process, I think as a woman. So, and by the way, I'm cutting in between. I am not underestimating any transgender. So, because I really don't have any personal and any grudges with them. Because being a trans woman, of course, I do respect to them. Because the thing is, we are all same. So I know what actually the pain they have gone through, and they are really suffering for. तो मुझे पता है एक्चुअली उन लोग क्या है और क्या सोच रहे हैं और किस दौर से गुज़र रहे हैं, किस ज़रिए से गुज़र रहे हैं. सो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ. वो ये है, लड़कों और लड़कियों को ये फ़र्क होता है कि मैं एक्चुअली क्या हूँ, और उनके लिए मैं एक एलियन हूँ कि मैं एक लड़का हूँ और लड़का हो के जन्म ली हूँ और मैं लड़की की तरह जीती हूँ. तो मैं क्या हूँ, कि मैं कौन सी बला हूँ एक्चुअली. और हमारे कुछ ट्रांसजेंडर की कम्युनिटी ऐसी हैं और हमारी कुछ LGBT की कम्युनिटी कुछ ऐसी हैं. अगर तुम लड़की हो, तुम लड़की बनना चाहते, be like a girl, be like a girl. Don't be loud or something like that. Now let me tell you one thing, both of you community. पहली बात तो मेरी बॉडी है, मेरा आत्मा है, मेरा सोल है, मैं चाहूँ जैसे भी जीऊँ. I'm not coming to you to give suggestion for yourself, that how you should be, and how you should behave or something like that. Yeah, if you give me that space enough to judge yourself to be like that, and you're really feeling that I am the person who can be with you as a friend or anything, you are giving that space, I can feel myself to be, keep my opinion for yourself, then of course I will give. And after that, जो मैं आपको बताने के बाद, अगर if you feel like that no, you are not able to take all those opinions or critics or something about yourself, so then please be clear पहले से ही कि भाई तुम मत बोल, मैं नहीं बोलूँगी. So अब बात रही एक लड़की को कैसे रहना चाहिए, कैसे ऐसे रहना चाहिए. ओ माय गॉड, मैं आंखें झुका के नीचे से रह के ऐसे करके वैसे करके नखरे, बॉस मेरे से नखरे नहीं होंगे. मैं काफ़ी नखरे करती हूँ कैमरे के सामने. पहली बात तो स्टीरियोटाइप हमारे पूरे वर्ल्ड में बोल सकते हो, इंडिया में ज़्यादा है कि लड़की को एक स्टीरियोटाइप रहना चाहिए, एकदम ढके ढुके, एकदम एक लिहाज में, एक अच्छे से लिहाज में, एक अच्छे लिबास में, और एकदम चुपचाप बैठी, सेंसिटिव, एकदम चुपचाप इधर इधर आंखें घुमा रही हैं, चुपचाप रह रही है. क्यों बॉस? बॉब कट लाइक छोटे हेयर वाली लड़की शादी नहीं कर सकती है, लंबी बड़ी लंबी ए हे चीची, लंबी लड़कियां कैसे होती हैं? अच्छा, अरे थोड़ी सी मर्दाना लग रही है, ओ माय गॉड ज़्यादा पढ़ी लिखी है, मत ज़्यादा बोल्ड है, अरे ज़्यादा मोटी है, ज़्यादा काली है, ज़्यादा बकबक करती है, ज़्यादा पढ़ी लिखी है, क्या होगा? सो ये तो है ही. उसके ऊपर कोई ट्रांसजेंडर अगर कोई ट्रांसजेंडर या ट्रांससेक्सुअल ज़्यादा पढ़ी लिखी है या मॉडर्न और समथिंग, उस पर तो और ज़्यादा जोर. ओ माय गॉड, क्यों जोर? क्योंकि एक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी तो उस तरीके से पली बड़ी है ही नहीं. उन लोग तो बहुत ही स्ट्रगल, लैला मजनू की तरह लाइफ स्टोरी बना के चलते आई हैं. हम सब चलते आए हैं, हम सब चलते हैं अपने अपने जगह पे. तो उन लोग अपनी एक दुनिया बना दी है कि हम लोग को इस तरीके से चलना चाहिए. लेट मी टेल यू वन थिंग, बीइंग अ ट्रांस वुमन वी ऑल नो दैट वी नीड टू हाइड आवर मस्कुलैरिटी थ्रू ऑल आवर सर्जरीज, थ्रू ऑल आवर medications and all those.
For for what? For only one sake, that is, we feel that we're a woman and we really need to look from outside to be a woman, like just a woman, of course, proper woman. But in my case, my thought process, my think processes are different. I'm a woman, that's all for me. दैट्स रियली ऑल फॉर मी. अगर ऐसी बहुत पैदाइशी लड़कियां हैं जो मर्दाना दिखती हैं, बहुत बदसूरत हैं, माशाल्लाह, भगवान, मुझे माफ़ कीजिएगा मैं ऐसी बातें कर रही हूँ, तो उन लोग की औरत नहीं है. उन लोग अपने आप को बोलेंगे मैं मर्दाना दिखती तो मैं मर्द हूँ, हमें तो थोड़े से ऐसे करके रहना चाहिए, हमें वैसे करके रहना चाहिए. मैं शायद औरत हूँ, मगर मैं शायद अगर मर्दाना की तरह दिखती हूँ तो इट्स ओके. एंड बीइंग अ वुमन, माय ग्रेस इज इनफ टू enough to project myself what I am. I don't need to like हाँ मुझे ढक के पहन के फिर I can feel about and people can feel easily that what I really I am. ये मैं स्पेशली ट्रांसजेंडर वालों की बात कर रही थी. पहले जो स्टीरियोटाइप बात कर रही थी वो मैं अपनी नॉर्मल हेट्रोसेक्सुअल और नॉर्मल जो नॉर्मल आप लोग बोलते हैं ना, नॉर्मल हेट्रोसेक्सुअल जो लड़के पैदा हुए हैं, लड़की ही पैदा हुए बचपन से, उनके लिए थे. अभी मैं ट्रांसजेंडर के बारे में बोल रही हूँ. भाई तुम जैसे हो वैसे ही रहो. मैं टकली थी और टकली में ही ग्रेसफुल थी. मुझे एक ट्रांसजेंडर होके मुझे बाल बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है. तभी भी मैं यूनिक थी, लोग हज़ारों लोग देखते थे. अब तो देखती हूँ मैं बाल बढ़ाने के बावजूद भी लोग मुझे देखते हैं. मैं तो थक जाती हूँ, रास्ते में जाते फिर भी देखते हैं. मैं कितनी ग्रेसफुल हूँ. आपको लगता है जितनी मैं करती हूँ मैं आप लोग को दिखाने के लिए नहीं करती. मैं कितनी लड़की हूँ. सबको सब कुछ पता होता है, सबको सब कुछ पता होता है. मैंने कुछ फीलर्स नहीं किए, मैंने कुछ ज़्यादा कुछ नहीं डाले कि मैं दिखूँ मैं बहुत लड़की हूँ, समथिंग लाइक दैट. और मैं अगर लड़का भी दिखती हूँ, डजंट मैटर फॉर मी. Yeah, I really do frustrated sometimes that why people not understanding me what I really feel for or something. मैं एक अलग ही यूनिक चीज़ हूँ, मैं बाकी लोगों से अलग हूँ, वो मुझे भी पता है. मैं अकेली ट्रांसजेंडर नहीं हूँ इस दुनिया में, काफ़ी लोग हैं, बट मैं इतनी दावा से बोल सकती हूँ मैं अलग ही हूँ. क्योंकि मेरी जो सोच है, मेरी जो एक प्लान है, जो मैं जिस दौर से गुजर रही हूँ, मेरा जो एक थॉट प्रोसेस है, सो मैं अलग हूँ. क्योंकि मैं उसको उस चीज़ में मुझे उसको उस मुकाम तक जाना है. क्योंकि मुझे लगता है बीइंग अ ट्रांसजेंडर वुमन, you should not feel that that is only your orientation and that's your limit to know. Please project your soul. आपका सोल क्या है, क्या बोलता है. My body is sex, male and female and third gender. That is sex. That my physical appearance is sex, right? That is my identity, what I really am. But my behavior can't push me towards that what I should be according my gender or my identity. My character is something different, which I like to do. There's no connection between identification with your character, right? There are a lot of women out there who really flamboyant, tomboy. They know how they need to behave according themselves because their heart says according what they really need to do. And at the same time, they are so much graceful when they really need to be. So fuck, I am graceful that I really know about of it. So don't need to tell me because you guys feel that I am different because you are not that capable and superior enough to stand in front of me. So fuck you, go and groom yourself and then let me know and then let me rectify my things around which is going around me, surround me, that you feel like that I am unique or I'm different from others because you guys doesn't have that potential to project yourself. So आप मुझे बताइए मैं कहाँ से क्या हूँ.
Pikachu. So guys, bye. Thank you. Mwah.